Hello all, this is CA Isha Agarwal and today we are going to learn about SQC1 in our first session. So whenever we start with standards, be it in CA Inter or be it in CA Final, हम generally SQC1 से start करते हैं. SQC1 is a precise छोटा सा standard जो फटाफट समझ में भी आ जाता है, learn भी हो जाता है. So today we are going to revise about SQC1 only. So SQC का मतलब क्या होता है? Standards on Quality Control. Now what is quality control? Quality control मतलब वो control जो आपको अपने firm में implement करना चाहिए so that you are able to provide optimum value to the client. क्योंकि आपने जैसे जब हम क्लाइंट से डिस्कस करते हैं या हम एंगेज करते हैं उस क्लाइंट से तो वी प्रॉमिस देम सर्टेन वैल्यूज़, वी प्रोवाइड देम कि नहीं हम रीजनेबल एश्योरेंस देंगे, हम प्रोवाइड करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप ठीक कर सकते हो, अगर आप ठीक कर रहे हो तो उसके क्या बेनिफिट्स है. सो SQC1 basically sets out standards so that you are able to provide value to the client, you are able to fulfill the promises made to the client and you are able to deliver your best to the client. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने बोला कि हाँ मैं ऑडिट रिपोर्ट तो 100% करेक्ट दूंगा या मैं अपना बेस्ट दूंगा, उसको 99% तक करेक्ट दूंगा, but ultimately you fail doing so because of certain techniques or because of certain non following or certain standards या फिर आपके internal conflicts है. So SQC1 basically lays down the elements that you should incorporate in your firm so that आपका firm का quality control maintained रहे and indirectly you are able to deliver all the values to the client and fulfill all the promises made to the client. So SQC1 का basic objective दो होता है. First is the firm should have a system of quality control which provides reasonable assurance that firm and its personnel follow the regulatory and legal requirements and the professional standards. As I said, SQC1 lays down कि आप quality control कैसे maintain कर सकते हो. सो SQC1 ऑलवेज सेज कि अगर आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से अबाइड कर रहे हो एंड जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से अबाइड कर रहे हो तो यू आर indirectly making the firm enough for quality control. If you are following the documentation as maintained in the other essays या फिर आप वो audit techniques follow कर रहे हो जो दूसरे essays में maintained है या फिर आपने वो audit procedures follow किया है या audit documentation वैसे की है, planning वैसे की है, अगर if you are going as per the standards of auditing already issued, you are indirectly already following the quality control. So SQC1 का first objective यही होता है कि firm should have a system of quality control which makes sure that the firm and its personnel are following the regulatory and legal requirements and the professional standards. The next objective that it states is जो भी आप reports issue करोगे इस quality control को implement करने के बाद वो appropriate होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वो inappropriate है. That is कि suppose अगर मैंने promise किया कि चलो मैं audit report दूंगा, पर ये नहीं होना चाहिए ना कि वो ऑडिट रिपोर्ट अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है. जब वो ऑडिट रिपोर्ट अगर लिस्टेड कंपनी की है, पब्लिक पढ़ रही है, शेयर होल्डर्स पढ़ रही है, पर उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, या फिर वाइल रीडिंग द ऑडिट रिपोर्ट दे फाइंड कि नहीं ऑडिटर ने तो अपना काम ही नहीं किया है, यहाँ पे चेंजेस थी, यहाँ पे कुछ था, या फिर अकाउंट्स एज पर फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं है पर ऑडिटर ने तो कुछ ओपिनियन ही नहीं इशू किया. सो इट इज़ ऑलवेज सेड कि जब वो क्वालिटी कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स एंड ऑल्सो जब आप रिपोर्ट इशू कर रहे हो मेक श्योर दैट इज़ अप्रोप्रिएट. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वो इनअप्रोप्रिएट है या फिर वो कुछ भी रिपोर्ट आपने इशू कर दिया कि चलो ठीक है बस काम के लिए काम करना था. सो ऑलवेज मेक श्योर फॉलो द स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्ट अकॉर्डिंगली. ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टैंडर्ड्स फॉलो कर दिया और रिपोर्ट में कुछ भी लिख दिया. यू हैव टू डू बोथ, स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने हैं एंड रिपोर्ट भी सही बनानी है. Next comes, so now we have understood what are the objectives, what is quality control, क्या होता है. Now we'll understand कैसे होता है. What are the elements of quality control जो आपको अपने firm में implement करनी चाहिए जिससे आपके firm में quality control incorporate हो पाएगी. सबसे पहले leadership responsibilities. सो वी ऑलवेज से अ लीडर इज़ अ मेकर और अ ब्रेकर. अगर लीडर फॉलो कर रहा है और लीडर का ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि नहीं मेरे फर्म में क्वालिटी कंट्रोल होगी, आई विल मेक श्योर ऑल माई एम्प्लॉयज़ अबाइड बाई इट, आई विल मेक श्योर मेरे फर्म में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन्ड रहे, आई विल मेक श्योर मेरे फर्म में रेगुलर टाइम्स पे डिस्कशन होते रहे, एक प्रोटोकॉल आई सेट की नहीं पहले प्लानिंग होगी, ऐसे प्लानिंग होगी फिर ही परफॉर्मेंस होगा. आई tell even the managers and the articles to engage in discussion so that even they can understand the client.
सो अगर लीडर हिमसेल्फ मेक श्योर कि एक इंटरनल कल्चर है मेरे फर्म में कि नहीं क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करना है, तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत इजीली फॉलो हो जाता है। देखो, देर आर टू थिंग्स, फर्स्ट द लीडर एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर लीडर मेक श्योर करता है कि नहीं फॉलो कैसे भी करवाना ही है, एंड अगर ह्यूमन रिसोर्सेज मोटिवेटेड है कि नहीं लीडर की बात सही है, लीडर हैज़ लॉजिक्स पुट इन प्लेस, लीडर समझा पा रहा है कि नहीं ऐसा क्यों करना चाहिए ऐसा नहीं, तो वो तो क्वालिटी कंट्रोल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बाकी जो चेंजेस है और बाकी जो अपडेशन है वो होती रहेंगी, बट प्राइमरी ये दोनों का बहुत होना इंपॉर्टेंट है कि नहीं हमें क्वालिटी कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट कम्स लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इफ़ अ लीडर थिंक्स कि नहीं मुझे क्वालिटी कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना है, आई विल नॉट लीव इट ऑन माई एम्प्लॉयज़ कि वो कुछ लाएंगे आइडियाज़ तब मैं करूँगा, या फिर वो कभी बोलेंगे क्वालिटी कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने तभी मैं करूँगा, आई डू इट फ्रॉम द फर्स्ट डे। बिकॉज अल्टीमेटली एज अ लीडर एज अ पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फर्म का रेपुटेशन के नेम को लिव अप करना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सपोज आप लीडर हो, आपके फर्म में कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा, आपकी फर्म की रेपुटेशन नहीं है अच्छी मार्केट में, बट यू आर स्टिल सर्वाइविंग समहाउ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि आपकी फर्म की रेपुटेशन बहुत अच्छी रहे मार्केट में, एंड इफ़ यू फॉलो क्वालिटी कंट्रोल तो वो आपके लिए अच्छा होगा। Beyond reputation, you will always save upon time and resources. You will get to know new audit techniques कि नहीं जिससे मैं अपना और टाइम रिसोर्स सेव कर पा रहा हूँ. You will able to engage with more clients. You will able to be experience more industries. आप दूसरे experts को ला सकते हो. So if you are implementing quality control, and as a leader it's very important to make sure everyone in the firm is implementing. ऐसा नहीं है कि मैंने सोच लिया as a leader कि चलो implement करना है, बाकी कोई करे नहीं करे मेरे को कुछ मतलब नहीं है, नहीं। एज ए लीडर यू शुड गाइड द अदर्स या फिर जो आपके जूनियर्स है कि नहीं तुम्हें भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यू शुड मेक श्योर कि उन्हें भी समझ में आए इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, दैट इवन उनका टाइम सेव होगा। दे वुड दे शुडंट हैव दिस ओपिनियन कि नहीं लीडर इंप्लीमेंट कर रहा है तो कुछ ना कुछ से फर्म का बेनिफिट है, नहीं। यू शुड मेक श्योर कि उनका भी टाइम सेव हो रहा है, उनके भी रिसोर्सेज सेव हो रहा है। So first and primary most important is leadership responsibility. So it's very important for the firm to have an internal culture that promotes quality control, that promotes good documentation, that promotes planning performance protocols. Next comes engagement, next comes ethical requirements. सो एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं ना, बेसिक इंडिविजुअल बेसिस है। ये ऑडिट आपको स्टार्टिंग से बोलता है कि एज एन इंडिविजुअल इफ यू आर स्टेपिंग इनटू ऑडिटिंग तो आपको ये सब कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट इज इंटेग्रिटी, दैट इज आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए क्लाइंट से। ऐसा नहीं है कि डिसऑनेस्टी में बस काम चल रहा है, उन्होंने बोला कुछ आपने सुना कुछ, आपने अपने पार्टनर को बताया कुछ, ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट विद बोथ द क्लाइंट एंड द फर्म। नेक्स्ट कम्स ऑब्जेक्टिविटी, आपको अपने ऑब्जेक्टिव में आपको खुद रहना चाहिए कि नहीं मुझे ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ और कुछ भी हो रहा है, मैं उससे डेविएट कर रहा हूँ, मैं कुछ तीसरा करने लग गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। Next comes confidentiality. If the client is trusting upon your data, trusting upon you with their data, तो उनका ट्रस्ट बिल्ट इन रहने दो। ऐसा नहीं है कि चलो क्लाइंट ट्रस्ट कर रहा है आपको कि आप कुछ ऑडिट रिपोर्ट दोगे, आप कुछ ऑडिट फाइंडिंग्स दोगे, नहीं मैंने उसको मार्केट में जाके फैला दिया कि देखो ऐसा ऐसा है, इस कंपनी का ऐसा है, सोचो ऐसे हो रहा है। नहीं, यू शुडंट डू दिस। if you are expecting cooperation from the client, even you should be cooperative enough from your end, right? ऐसा नहीं है ना कि आप सिर्फ जाके बोलोगे यार क्लाइंट डेटा नहीं देता, बट मेक श्योर कि आप वो ट्रस्ट बिल्ट इन करो क्लाइंट के मन में कि नहीं मैं इसको डेटा दूंगा तो ये इसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा, ये बाहर फैलाएगा नहीं। So if you want cooperation from client side, even you should make sure you are cooperative enough and confidential रख रहे हो, आप उनका डेटा फैला नहीं रहे हो कहीं पे। नेक्स्ट कम्स प्रोफेशनल बिहेवियर। No, neither being too sweet or being too rude would serve your purpose. ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो मैंने बहुत स्वीटली मैं बात कर रही हूँ क्लाइंट से, और ऐसा फिर क्या होता है ना वो बीच बीच में क्या होता है फेमिलियरिटी थ्रेड्स बिल्ट इन हो जाते हैं, फिर आपको लगता है यार मैं इनको कैसे बोलूँ, इनकी गलतियाँ हैं, मैं तो इतनी स्वीटली बात करती हूँ फिर कैसे बताओ, तो वो नहीं करना। नीदर बीइंग टू रूड कि नहीं तुम मुझे डेटा दो, मैं ऑडिटर हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नो, फिर क्लाइंट आपको आधा डेटा ही नहीं देगा। सो मेक श्योर यू आर प्रोफेशनली बिहेव्ड। आप क्लाइंट से उनका डेटा ले रहे हो, यू आर कम्युनिकेटिंग योर ऑडिट फाइंडिंग्स ऑन टाइम, आप करेक्टली बिहेव कर रहे हो, बस दैट्स इट। प्रोफेशनल बिहेवियर इज दिस ओनली, वेरी सिंपल, बट इफ़ यू डू वो आपके ही काम आएगा। प्रोफेशनल competence, that is
ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैं सीए बन गई, चलो अब मैं सीए बन गई तो अब मुझे आगे कुछ नहीं पढ़ना, जो हो रहा है होने दो, जो कर रहा है करने दो, मैं स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ूंगी, या प्रोनाउंसमेंट आ रहे हैं आने दो, इंडेक्स में चेंज हो रहा है होने दो। मैं तो एक बार सीए बन गई, अब मैंने बुक्स को हाथ नहीं लगाना है, बहुत 5 साल बहुत पढ़ना पड़ा नहीं। Professional competence means if the client is trusting you as a chartered accountant, he is providing you the audit का data, audit everything, तो आपको भी competent होना चाहिए, आपको भी updated होना चाहिए। अगर कुछ नए pronouncement आ रहे हैं या कुछ changes है जो आपके client पे applicable होंगे, तो you should make sure कि आप वो changes implement कर रहे हो, वो client को बता रहे हो कि अगर उनकी कुछ गलतियाँ हैं कि नहीं ये change हो गया है, even they should implement this change। या फिर अगर उनके एफआरएफ में कुछ चेंजेस है, फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कुछ चेंजेस है कि नहीं चलो ऐसा नहीं ऐसा होगा, या फिर अब सपोज जैसे कारो 2020 वॉज बॉट इन, तो आपको यू शुड स्टे अपडेटेड कि नहीं मुझे भी इतने एडिशनल डेटा चाहिएंगे, मुझे भी ऑडिट रिपोर्ट में अपने उसमें जस्टिफाई करना है एंड रिपोर्ट करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, सो दैट इवन द क्लाइंट गेन्स कॉन्फिडेंस कि नहीं आई हैव अपॉइंटेड द करेक्ट पर्सन। Next comes client acceptance and continuance procedure. So SQC1 always state कि आप किसी भी client को accept करने से पहले या किसी client के साथ further engage करने से पहले make sure you have CTR, capabilities, times and resources. That is आपके पास आप capable हो उतने, आपके पास जो भी अगर उनको कुछ expert चाहिए या कुछ ऐसा कुछ अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, या फिर आपकी टीम में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो होने ही चाहिए, तो यू हैव देम, यू आर केपेबल इनफ कि आप उनका प्रोजेक्ट हैंडल कर पाओगे, आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑलरेडी 20 प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सेप्टिंग आई हैव एक्सेप्टेड, आई मे नॉट बी एबल टू डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन द करेक्ट टाइम। ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हैव द टाइम यू प्लान इट कि नहीं मैं कर पाऊँगा, आई विल बी एबल टू सबमिट इट टू द डेडलाइन, तभी आप एक्सेप्ट करो। लास्ट इज रिसोर्सेज, आपके पास उतना मैन पावर है उतने रिसोर्सेज है तभी एक्सेप्ट करो। दैट इज SQC1 स्टेट्स कि ये आपकी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। CTR कैपेबिलिटी होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए। मेक श्योर बिफोर एक्सेप्टिंग एनी क्लाइंट कि आप ये सब चेक्स लगा रहे हो, आप देख रहे हो कि क्लाइंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर सकता है, क्लाइंट इंटेग्रल है, क्लाइंट भी डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर क्लाइंट डिसऑनेस्ट है अल्टीमेटली लास्ट में आपका ही इट्स अ ड्रॉबैक फ्रॉम योर साइड ओनली, क्योंकि क्या होगा फिर लास्ट में क्या होगा कि पता चलेगा क्लाइंट मैनेजमेंट इटसेल्फ डिसऑनेस्ट है, वो डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा, आप ऑडिट नहीं कर पा रहे हो, बाद में 2-3 साल बाद पता चलेगा कि नहीं चलो ये फ्रॉड हो रहा था कंपनी में, हमें पता ही नहीं चला। सो इवन मेक श्योर योर क्लाइंट, ऑब्वियसली यू कांट डू कि मैंने पूरा अच्छे से चेक लगा लिया कि कुछ गलतियाँ ही नहीं है तभी मैं एक्सेप्ट करूँगा, नो, बट मेक श्योर कि यू चेक द पास्ट हिस्ट्री, यू सी कि नहीं ठीक है क्लाइंट इंटेग्रल है, क्लाइंट एथिकल है, क्लाइंट जो भी एथिकल प्रिंसिपल्स है वो फॉलो करता है। सो दीज आर सर्टेन चेक्स यू नीड टू डू। CTR वो आप अपने फॉर्म से देखोगे कि मेरे पास कैपेबिलिटीज़ है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास रिसोर्स है, तभी मैं एक्सेप्ट करूँ। और देखो ये इंटेग्रल है, क्लाइंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर रहा है, देन ऑल दीज आर चेक्ड, तभी आप कुछ किस क्लाइंट को एक्सेप्ट करो या उसको रिटेन करके कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं करो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है बट फिर भी बस करना है, वो फीस दे रहे हैं तो करना है। अरे आज उनका काम नहीं होगा, आज उनको 2 मंथ्स 3 मंथ्स डिले होगा, चलो एक बार उनका काम नहीं हो, बट नेक्स्ट टाइम वो आपको कभी काम नहीं देंगे, प्लस जो रेपुटेशन जाएगी मार्केट में वो अलग। सो ऑलवेज मेक श्योर कि बिफोर एक्सेप्टिंग कम ही क्लाइंट एक्सेप्ट करो, बट बिफोर एक्सेप्टिंग यू मेक श्योर यू आर एबल टू डिलीवर वैल्यू टू द क्लाइंट। आप परफॉर्मेंस कर लो, आप अपना प्लानिंग वैसे कर लो कि नहीं आई विल बी एबल टू डिलीवर गुड परफॉर्मेंस, तभी आप उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करो। या उस क्लाइंट का अगर रिटेनरशिप है, अगर आप उसको रिटेन कर रहे हो आफ्टर 5 years, तो फिर तभी उसके साथ एंगेज करो। लास्ट नेक्स्ट कम्स ह्यूमन रिसोर्सेज। सो ह्यूमन रिसोर्सेज में बेसिकली क्या होता है, आज जैसे मैंने कहा कि इन द फर्स्ट पॉइंट ऑल्सो कि हाफ द स्टेप्स लीडर विल डू एंड हाफ द स्टेप्स ह्यूमन रिसोर्सेज नीड टू। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज मोटिवेटेड है कि नहीं हमें करना है, हमें क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करनी है, हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है, हमें सब SQC के प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, तो बहुत इजीली इम्प्लीमेंट हो जाएगा SQC इन द फर्म। बट अगर ह्यूमन रिसोर्सेज ये सोच रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन सर ने प्रिस्क्राइब किया पर हम तो नहीं करेंगे, या फिर कोई भी ऑडिट के पहले प्लानिंग करनी होती है वो भी हम तो नहीं करेंगे,
If human resources themselves are not motivated, themselves do not follow ethical principles, तो quality control implement करना is very difficult. So always make sure कि human resources also stay motivated and understand the value of quality control. If you make them understand कि these are the reasons you want to implement quality control in your firm, या फिर these are the reasons how quality control will benefit the firm and then itself, so it's quite likely that they'll implement them. So always make sure your human resources even before electing, आप रिक्रूट भी कर रहे हो सिलेक्ट भी कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो पर्सन जो है सामने वाला वो इतना मोटिवेटेड है कि नहीं मैं फर्म की पॉलिसी सब फॉलो करूँगा. So before recruiting also make sure this check, and अगर आपने recruit कर लिया है make sure you make them motivated enough या फिर make them understand की value क्या है quality control की. Because if they make sure कि नहीं quality control implement करना है तो वो बहुत easily implement हो जाएगा क्योंकि half the side अपने leader ने direct किया and उन्होंने work किया तो it's very easy to implement quality control then. नेक्स्ट कम्स एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्या होता है बेसिकली, देखो आप इतनी प्लानिंग कर रहे हो रिक्रूटमेंट सी टी आर सब कर रहे हो वो किस लिए, परफॉर्मेंस के लिए. यू आर एबल टू डिलीवर गुड परफॉर्मेंस विच helps you get better results, good results. तो इसीलिए अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ गुड यू परफॉर्म. सो मेक श्योर यू हैव दिस गुड कल्चर कि नहीं कुछ भी अगर ऐसे हम चलेंगे कि मेरे को प्लानिंग का एक डॉक्यूमेंट करके रखना है, मैंने पूरा डॉक्यूमेंट कर लिया कौन सा क्लाइंट कौन सा पर्सन कहाँ एंगेज होगा किस एरिया में एंगेज होगा, कौन किसको डायरेक्ट करेगा कौन समझाएगा, सीनियर्स कौन कौन रहेंगे जूनियर्स के साथ, सो दैट उनको डायरेक्शन मिलती रहे सुपरविजन मिलती रहे. आफ्टर द जूनियर्स वर्क इज डन प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए. आफ्टर द मैनेजर लेवल रिव्यू इज डन तो एक पार्टनर लेवल रिव्यू होना चाहिए. जो भी डिफरेंसेस ओपिनियंस की वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए. या फिर जैसे सपोज आज आई हैड अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट विद द अदर पर्सन, तो चलो मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया कि चलो अगर पार्टनर राउंड पे भी इफ द पार्टनर वांट्स टू सी कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे डाउट्स आए, या फिर अगर सपोज कल को कोई तीसरा पर्सन आता है और मैं नहीं रहती हूँ फॉर्म में, इफ़ डॉक्यूमेंटेड रहेगा एंड ही गेट्स ऑन द सेम डाउट, तो बेटर रहेगा कि चलो मैंने डाउट को डॉक्यूमेंट करके रखा है, उसने रेफर किया ये कंक्लूजन निकला था तो ऐसे फॉलो करना है. सो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, डिस्कशंस होनी चाहिए प्रॉपर. वही डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू तो मैंने बोला है कि जैसा होना चाहिए. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए सब चीज़ की. सपोज जैसे मैंने प्लान किया वो ठीक है, मैंने परफॉर्म किया ठीक है, अब जो जो परफॉर्म किया जो जो वाउचर्स मैंने लिए, या फिर जो जो अगर मेरे को मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स का ही लेना है एज़ पर ऐसे 580 की नहीं, उन्होंने बोला है कि आपको रिप्रेजेंटेशन लेटर्स देना है इस केस में, तो मैंने वो लिए है कि नहीं, अगर लिए तो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना. बिकॉज इससे क्या होता है ना, फर्स्ट तो एक चीज़ तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन बेटर मेंटेन रहती है, पार्टनर के लिए इजी रहता है. ऑल्सो इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग इन फर्दर ईयर्स तो चलो मेरे पास अगर मैंने फर्स्ट ईयर में डॉक्यूमेंटेशन लिया था जो 5 years के लिए वैलिड है, आई डोंट नीड टू गो अगेन एंड हैरेस द क्लाइंट फॉर द सेम अगेन एंड अगेन. मैंने फर्स्ट ईयर में ही ले लिया एंड द नेक्स्ट ईयर द पर्सन कैन रेफर दैट फाइल कि नहीं चलो यहाँ पे होनी चाहिए. सो वो आपके लिए भी बेनिफिट होता है, इवन द क्लाइंट सीज की चलो कितनी अच्छी फर्म है, बार बार नहीं मांग रही सेम चीज़ अगर 5 साल के लिए और उन्होंने एक बार मांग लिया तो. So engagement performance is all about how good you implement quality control. कि आपने सब प्लान तो कर लिया बट हाउ गुड यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट कि वो एक्चुअल परफॉर्मेंस में रिजल्ट कर रहा है एंड द परफॉर्मेंस इज एक्चुअली गिविंग यू गुड रिजल्ट्स. लास्ट कम्स मॉनिटरिंग. सो मॉनिटरिंग में क्या होता है बेसिकली, मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मॉनिटरिंग आपको बोलता है कि आप क्वालिटी कंट्रोल जो भी प्रिंसिपल्स लगा रहे हो अपने फॉर्म में वो आप टाइम टू टाइम मॉनिटर करते जाओ. ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार फिक्स कर दिया तो अब वो वैसे ही रहेगा, मैं उसको कभी वापस नहीं आके देखूंगी. एक बार मैंने लिख दिया कि चलो ऐसे ही होगा प्लानिंग, बस उसके बाद देर आर नो चेंजेस, तो ऐसे नहीं करना चाहिए. there should be proper monitoring. there should be it should be seen कि मैं जो ऑर्डर टेक्निक्स फॉलो कर रही हूँ वो एज पर टुडे है. ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहले वो पेन पेपर पे कुछ चलता था तो आज मैं वो पेन पेपर पे कर रही हूँ, मैं अपना ही टाइम एंड अपना ही रिसोर्स वेस्ट कर रही हूँ. इवन द क्लाइंट विल सी कि नहीं चलो दूसरे फर्म से है वो अपडेटेड है, वो कम भी फीस चार्ज कर रहे हैं बिकॉज टाइम कम लग रहा है, तो इवन दे विल इवेंचुअली शिफ्ट टू सम अदर फर्म्स. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. इफ़ यू कीप ऑन मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग योर सेल्फ विद वॉट एवर चेंजेस तो वो आपको ही बेनिफिट होगा, आपका ही टाइम कम लगेगा. एज आई सेड टाइम कम लगेगा, विल बी एबल टू गैदर मोर क्लाइंट्स.
So always make sure you're monitoring, you spread that monitoring thing in the firm also कि नहीं अगर employees को कुछ मिला तो even they can bring up to you, या फिर अगर आपके juniors को कुछ मिला तो even they can bring up to you. If the whole firm is engaged कि नहीं हमें updated रहना है, हमें एकदम proper audit करनी है, good quality audit करनी है, तो quality control implementation is very easy. Once again, we'll revise elements of quality control: leadership responsibilities, ethical requirements, client acceptance and continuance procedure, human resources, engagement performance, and monitoring. So thank you. Hope you had a great learning. Also, मैं ये बोलना चाहूँगी अगर if you are watching this video just before the exams, just for the sake of revision, you can watch this video at 1.5x. Understandable है, ऐसा नहीं है कि सब सर के ऊपर से जाएगा. No, it's good understanding. अगर आप आराम से समझोगे तो वो हो जाएगा. And also revision के लिए ये बहुत benefit होगा कि आप कम time में 10-15 minutes में you are able to revise SQC1. Thank you.